So basically, we will be starting with the first topic, which is basics of investment, right? So through this course, what we are trying to find out is that when to buy the securities and when to hold on to them despite any downside or any bad news doing circles in the market, and when to sell it. So you should not be holding it for too long also. So this is what we are going to cover. ये वैसे तो बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का पूरा ही कंटेंट है. इस क्लास में तो इतना सब कुछ नहीं हो पाएगा, right? But we will try to cover as much as possible. So what is investment? Then we will see the difference between investment and speculation. Then we will look at different types of investment or the different avenues where we can invest, right? In order to save taxes or in order to earn good returns. So different motives, different kinds of investment, instruments, right? Then we will look at different approaches to investing. We can have active approach, then we can have passive approach also. Majority of us go with the passive approach, right? Then we will look at risk trade off. I think somebody is trying to. Yeah, okay, this is very difficult. I think in the next class we will keep the first 5 minutes for everybody to come, and then we can start. Yeah, so then we will look at risk return trade off, right? And in that we will do some numericals also. और इसमें से definitely आपको हर साल 10 marks का 15 marks का भी, but mostly 10 marks का एक numerical आता ही है. ठीक है, तो ये तो होगा आपका एग्जाम पर्पस से. इसके अलावा when we finish this chapter I will give you a project work which will be for 10 marks, right? So you will have to take up securities का annual price, right, for let's say 5 years or 10 years. Then you will calculate the systematic risk, the unsystematic risk, beta, and the standard deviation or the variance, which is termed as risk only. So I will give you a list of things that you have to calculate, and you will have to choose 5 companies for that, and you will do a project for 10 marks, right? Is that clear? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Lastly, we will look at we will compare different investment alternatives, right? Which one to go for depending on the age you are at, right? Depending on your motive, whether you are a risk taker or you are risk averse, right? Majority of us, 99% or 95% of us, are risk averse people, right? That is rational thinking, right? So we will look at different alternatives, right? So let's start with the first thing. What is investment, right? अच्छा, तुम लोग बताओ, what is investment? Anything, any definition or anything that comes to your mind when we say investment? Basically, to hold on to your money so that you can use it in future, or maybe Okay. like, yeah, like giving it or investing it basically somewhere. Mm-hmm. Yes, so exactly that only. When you sacrifice your current consumption, right, for for additional income in future, so that is investment, right? So why do we do it, right? Because they say a bird in a hand is better than two in the bush, right? So why are we ready to deal with this kind of uncertainty? The reason is a hope for profit, right? Because we are very optimistic and we hope that instead of future, instead of keeping your money by yourself today in the present, we might earn profits, right? So this desire for profits is what has given birth to investment, right? So there can be real investment also, there can be financial investment also. Depends on the person you are asking that what is investment. If you ask a businessman or if you ask an economist, then they will probably tell you that investment is investing in plant and machinery, land and building, right? That either gives a boost to the economy or their
respective business, right? But when we are talking about investing in stock markets, then we talk about financial investment, right? So this is what we will be talking about in the whole course. So financial investment में we will be talking about, or we invest in shares, debentures, your derivatives, different kinds of investment. अभी थोड़ी देर बाद आ जाएंगे बहुत सारे, ठीक है? So our course is concerned with this second part, which is financial investment. So what are the factors affecting investment, right? ये कई बार question repeat हुआ है, ये 10 years में I was looking at 10 years. और इसको अगर वो पूछ लें व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, या फिर पूछ लें व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट, तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है? अब फर्स्ट आ जाता है आपका रिटर्न, ठीक है? सो रिटर्न सबसे इम्पोर्टेंट, दिस इज द रीजन व्हाई वी आर इन्वेस्टिंग, राइट? सो दिस इज द इनकम जनरेटेड ओवर द पीरियड। आपने जितनी देर के लिए मैच्योरिटी पीरियड जो भी है आपकी इन्वेस्टमेंट का, उसके लिए आपने जो भी इन्वेस्ट किया, तो that is what you get in the form of return, right? So let's say I buy a share of 100 rupees and it has a return of 10%, ठीक है? So अगर उसका maturity period मैं 1 year ही लेके चलूं, तो मुझे at the end of 1 year कितना मिलेगा? Yes, tell me. If I buy a share of 100 rupees, right, and it has a return of 10%, right? So at the end of the year, if the share matures, what will I get in total? 110. 110. 110. Exactly, very easy, right? 110. Now let's say the share price at the end of the year also increases to 105 rupees, ठीक है? तो तब कितनी हो जाएगी हमारी रिटर्न? एब्सोल्यूट टर्म्स में बता दो, जैसे 110 बताई थी। 115.5. 115. So it won't be 115. 115.5 का रीजन क्या लग रहा है आपको? 105 का 10% कर दिया। नहीं, इट विल बी 115 ओनली, ठीक है? अगर मैं आपको इसको रिटर्न टर्म्स में कैलकुलेट करके बताऊं, तो देखो, अगर 10% तो आपका इंटरेस्ट ही हो गया, ठीक है? बाकी आपका एप्रिसिएशन इन दी कैपिटल वैल्यू, राइट? सो 105 सेलिंग प्राइस माइनस योर परचेज प्राइस डिवाइडेड बाय योर बेस, अब परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे तो इनटू 100, कितना आ गया ये? 515 बाय 100 इज इक्वल्स टू 15%, right? So you are getting a return of 15%. और अगर वैसे देखोगे तो ये कितना 15 ऐड हो गया 100 में, तो 115. इज इट क्लियर टू एवरीबडी? नो मैम, ये फॉर्मूला मैम कैसे किया समझ में नहीं आया। फॉर्मूला देखो, मैं सिंपल लगा रही हूँ। आई एम कैलकुलेटिंग द टोटल रिटर्न दैट आई विल बी गेटिंग, ठीक है? सो माई रिटर्न इज व्हाट? द इंटरेस्ट दैट आई गेट, राइट? यस और नो? यस मैम, यस मैम। प्लस द एप्रिसिएशन इन माई कैपिटल गेन, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। सबको समझ आ रहा है? यस मैम। हाँ, सो इंटरेस्ट प्लस योर कैपिटल गेन, that will be my total return, right? So this is what I'm doing here, my interest, right, and my capital gain. उसको मैंने परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 कर दिया, तो 15% आ गया, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर नाउ। यस मैम। ओके, नाउ लेट्स कम टू रिस्क, ठीक है? ये अभी मैं बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन बता रही हूँ आपको। ऐसा रिटर्न कैलकुलेट करने के देयर आर इन्फिनिट वेज ऑफ कैलकुलेटिंग रिटर्न्स, और इसके लिए एक देयर इज अ प्रॉपर ब्रांच कॉल्ड फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, राइट? सो ओवर टाइम दे हैव कम अप विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, राइट? तो देयर आर एन नंबर ऑफ वेज। एक जैसे इन्फ्लेशन इंडेक्स कर दिया, है ना, या फिर फ्लोटिंग रेट रख दिया कि अच्छा इतना 2% फिक्स देंगे हम, और बाकी ऊपर का जो है 3-4% फ्लोटिंग रख दिया। और एक लाइबोर का भी ऐसे ही होता था मोस्टली। जो आपके जैसे इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें दे टाई टू लाइबोर। व्हाट इज लाइबोर?
Anybody? London interest, something. Hmm. London. London, London interbank offer rate. ठीक है, सो इंटरेस्ट नहीं है, इंटरबैंक ऑफर रेट है, राइट। सो ये डेली कोटेशंस भेजी जाती हैं विच नो बैंक नोज कि दूसरी बैंक की कौन सी है, एंड डेली बेसिस पे ऑल द बैंक्स, मेजर बैंक्स इन लंदन जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड वगैरह ये सब हो गए, so they send a quotation and then a weighted average of those quotations is calculated, and then you determine the LIBOR, the rate at which the banks in London will lend money to each other, interbank offer rate, right? So mostly contracts आप जो देखोगे 2008-9 का भी एक लाइबॉर स्कैंडल भी हुआ था, इनफैक्ट यू कैन गो आफ्टर दिस क्लास यू कैन रीड अबाउट इट। सो मोस्टली जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दे वर टाइड टू लाइबॉर, लाइबॉर प्लस 2% कर देंगे, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े बैंक्स के बीच में, कंट्रीज के बीच में, या फिर मेजर बिजनेसेस के बीच में, जो भी डेली के ही होते हैं, ज्यादा टाइम पीरियड होता नहीं है, ठीक है। एक मैक्सिमम देखो 1 वीक चल जाएगा, 10 दिन चल जाएगा, या फिर इंट्राडे के लिए, तो ये वाला रेट बहुत प्रेवलेंट था। एंड देन दीज बैंक्स हैड स्टार्टेड कोल्यूडिंग विद ईच अदर। तो जो ये अनोनिमस नहीं रह रहा था लाइबॉर रेट, जो कोटेशंस जाती थी, रोटेट होती थी बैंक्स में, राइट। तो दैट इज व्हाई इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज, कि उनको अगर चाहिए कि अच्छा हम इसको थोड़ा सा रिग कर दें, थोड़ा सा हाई कर दें, और उस दिन हम पर्सनली अपने जो भी रिलेटिव्स लगा लो या कुछ भी फ्रेंड्स है उनके थ्रू इन्वेस्ट कर देंगे, और बिकॉज वी नो दैट आज रेट हाई रहने वाला है, right, because we have rigged the rate, and then they will take out the money, so जो उस दिन का price differential, because the rate was high, so they would earn profits like this, right? So that was LIBOR, that is what LIBOR scandal was about, right? So we were talking, coming back to risk, right? So risk is it's the variability in expected return, right? So basically what risk is that, if the company is telling me that we will give you 10% return after 1 year, then what are the chances that the company will not fulfill its promise, right? What are the chances that the company will default on its promise, and what will be the difference? What if I get only 8% instead of 10%, right? So that is the risk that I'm taking. So we can quantify it mathematically, right? How do we quantify it? By calculating the variability in the expected return. You can write it down. Please keep your notebooks open when you are taking this class. Variability in expected return. So if you have done basic statistics, then you know that this variability, right, is calculated through standard deviation, right? And standard deviation को coefficient क्या होता है? Coefficient of variation. How many of you have here done standard deviation somewhere? Majority of you? कोई भी एक बच्चा बोल दो. Yes, ma'am. Okay, good. So mathematically I'm assuming everybody knows how to calculate it. Those who don't know, जिनके पास स्कूल में नहीं था, don't worry, we will do it again, right? सो मैथमेटिकली आपको फॉर्मूला भी हम थोड़ी देर में करेंगे, तो तब आपको पता चल जाएगा। बट अगर कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो इफ दिस इज माय नॉर्मल, सॉरी ये थोड़ा गलत बन गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है अगर मेरा ये, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है? दैट माय मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड, जिसका तीनों वैल्यूज बिल्कुल सेंटर में होता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड फॉर एनी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दैट यू डू, first is the assumption of normality, right? And how do you achieve normality? Because उसके बिना आप कोई भी statistical analysis नहीं कर सकते हैं, right? So how do you achieve this? एक थ्योरम है, central limit theorem, right? So I hope everybody knows about it, right? So as the number of observations increases, right? उसी तरह से अगर आपका n 30 से बड़ा हो जाता है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो आपका n अगर 30 से बड़ा हो जाता है, राइट, उसमें आपको नॉर्मल ऑब्जर्वेशन
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपकी बनने लगती है। N30 का क्या मतलब है, सपोज करो आप कोई, अब अगर हम ये रिटर्न रिस्क की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको अगर रिस्क और रिटर्न कैलकुलेट करना है, मैं एक कंपनी उठाती हूँ, इन्फोसिस का डेटा उठाती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं चाहती हूँ मेरा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अच्छे से हो, इसके लिए मैं मिनिमम 30 डेज का डेटा तो उठाऊंगी ही, राइट, so that my distribution becomes normal, right? And whatever statistical analysis I do, that is accurate. Clear? यस मैम। Okay, good. So अगर नहीं समझ आया, डोंट वरी, आगे हम जाकर इसके प्रॉपर न्यूमेरिकल करेंगे रिटर्न रिस्क ट्रेड ऑफ के, तब थोड़ा और समझ आ जाएगा, ठीक है। देन कम टू लिक्विडिटी, राइट। सो व्हाट इज लिक्विडिटी? कैश इन हैंड। Cash in hand or the ability to convert it into cash, right? लिक्विडिटी ज्यादा होने का मतलब ये है कि वो रेडिली हम उसको कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, राइट। सो मोस्ट लिक्विड क्या हो गया हमारे पास? कैश। अभी मैं बाहर जाऊंगी, फ्रूट्स खरीदूंगी, तो कैश एकदम से कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा, राइट। तो मोस्ट लिक्विड इज कैश। देन यू हैव हाईली मार्केटेबल शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, राइट, जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, उनका जो लिक्विडिटी है वो और हाई रहता है, राइट। इसके बाद इफ यू स्टार्ट गोइंग फॉर इक्विटी शेयर्स, ठीक है, उनका उनसे कम होगा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का, कि कंपैरेटिवली कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का लिक्विडिटी थोड़ा कम रहेगा। देन इफ यू मूव ऑन टू लैंड एंड बिल्डिंग, उसका तो लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं है, राइट। अगर आपको लैंड और बिल्डिंग को बेचना है, तो उसको ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बैठी हूँ और मैंने कल ही बेच दिया, उसमें कई दिन लगेंगे, राइट। So that means the ability of land to be converted into cash is very, very less as compared to your, let's say treasury bill or, money market instruments, right? So liquidity is very, very important. It's quite possible that a company has a lot of money, right? But it is invested in, let's say, land or building or, heavy plant and machinery. आपने शिप बिल्डिंग की आपकी कंपनी है और उसमें पैसा इतना इन्वेस्टेड है और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है क्रेडिटर्स को देने के लिए, राइट। एंड दिस हैपेंस, बहुत सारी कंपनीज इसलिए भी वाइंड अप हो जाती हैं, नॉट बिकॉज दे आर नॉट प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट का उम्मीद है अगले 5 सालों में, बट उनके पास करंटली हाथ में ही पैसा नहीं है अपने शेयर होल्डर्स या फिर डेट होल्डर्स को देने के लिए, एंड एज अ रिजल्ट दे आर डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, राइट। तो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम, इफ यू इन फैक्ट वेरी गुड एग्जांपल इज दिस रिसेशन ऑफ 2008-9, इसमें क्या हुआ था? इट्स कॉल्ड सब प्राइम क्राइसिस, राइट। व्हाई इज इट कॉल्ड सब प्राइम क्राइसिस? Can anybody tell me what happened in the recession of 2008-9? And you are welcome to be wrong also. I don't expect you to be right. Ma'am, the On the houses stock market. prices were going down, and the banks had a number of SPVs, and the Mm-hmm. mortgage-backed securities were also the price were going down, and then credit default swaps were like the people who had done credit default swaps or What are mortgage-backed credit securities. default swaps? So ma'am, basically, if like I'm doing a credit default swap, so I don't need to have that Mm-hmm. asset with me. So if I'm doing a default swap with you, so that means Mm-hmm. I can. It's like more like a call option that Mm-hmm. if the price goes down, then you need to pay me the money. If the price won't go down, then I'm already paying you the premium, which will be your Mm-hmm. fees. Mm-hmm. ठीक है. So this is kind of an insurance, credit default swaps, right? But what has it, like, what is the role of CDs or CDS in your recession 2008-9? So Anybody else? Anybody else? Ma'am, banks granted loans, home loans to people with poor credit histories, and they were given high risk loans. So it ultimately Yes. led to the
Hmm. Okay, so you all are correct. So what happened in 2008-9 was that it did not start in 2008-9. It eventually started in 2001, right? Because in 2001 we had our dot-com bubble, right? So people and dot com bubble में there were many websites और बहुत सारा ये e business start हो रहा था, right? And eventually the bigger businesses absorb the smaller ones, right? But US recovered so quickly from dot-com bubble that they thought that maybe they had tamed the business cycles, right? And that they did not need to be careful, right? So from 2001, what happened was that businesses started giving out mortgage backed these loans to people, and they did not even check the credibility of people to whom they were giving the loans, right? So there were organizations. Just a second, my pen is not working. Yeah. So there were organizations like, Fannie Mae. Has anybody heard of them? Or Freddie Mac, राइट? इनका आई थिंक वैसे जो एब्रिवेशन है FNME कुछ इस फाइनेंशियल नेशनल मॉर्गेज एसोसिएशन समथिंग लाइक दिस. So they were called as Fannie Mae, Freddie Mac, right? So these were the two government mortgage associations, right? So इससे क्या होता था? There was a process called securitization. Securitization. So इसमें what happens is that a particular bank will take, जैसे सपोज करो दिस इज the investor or the house buyer, right? Then you have your bank here, right? And then here you have, let's say, these Freddie Mac and Fannie Mae, right? And here you have your investor in stock market, right? अब ये सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस में होता क्या है? सबसे पहले बैंक ने इनको लोन दे दिया, राइट? अब इसी तरह के कई हाउस बायर्स हैं, HB1, HB2, HB टिल N, राइट? सबको इसी तरह से इन्होंने दे दिया लोन, राइट? नाउ व्हाट दिस बैंक विल डू इज, आई एम ऑडिबल टू एवरीबॉडी? यस मैम. ओके. सो अब इन्होंने सबको लोन दे दिया. नाउ दिस बैंक विल बंडल अप ये जितने भी लोन्स हैं इनको बंडल करके एक सिक्योरिटी बना देगी, राइट? अब ये जो लोन्स थे हमने इसको एसेट मान लिया कि ये लोन्स नहीं है, ये एसेट है, क्योंकि ये बैंक के लिए तो एसेट ही है ना, राइट? बिकॉज अब इन्होंने पैसा तो दे दिया, अब इनको वापस ही लेना है. नाउ दे विल सेल दिस बंडल हियर टू Fannie Mae, राइट? तो ये जो लोन बंडल है ये इधर सेल कर दिया एसेट की तरह, और इन्होंने क्या किया, ये आगे सेल कर दिया. सो दिस लोन बंडल इज नथिंग बट मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी, राइट? जो आप बार बार ये बोल रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं. सो दिस इज नथिंग बट मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी जो आपने यहाँ सेल कर दी, राइट? अब ये इस इन्वेस्टर ने इनको पैसा दे दिया यहाँ पे, राइट? इससे इनका ऑपरेशन चल रहा है, जो भी चल रहा है, राइट? एंड देन ये जो है इनको सर्विसिंग फी पे कर देंगे इसी मनी में से, राइट? नाउ एवरी मंथ व्हाट विल हैपन दैट these house buyers will pay the interest here to bank, राइट? अब ये जो बैंक है अपना उसमें से सर्विसिंग फी काट के, ये जो सर्विसिंग फी है, राइट, ये माइनस करके बाकी का जो है वो आगे पास ऑन कर देगा, क्योंकि बैंक ने अपने पास तो लोन्स रखे ही नहीं, उसने आगे फॉरवर्ड कर दिए. तो बैंक क्या करेगा, अपनी जो इसको अब सर्विसिंग फी बोल लो, गारंटी फी भी बोलते हैं कई जगह पे, वो काट के जो बाकी का इंटरेस्ट था ये माइनस करके आगे आ गया, ठीक है? अब ये जो है अपने तो एक्सपेंसेस हैं वो माइनस करेंगे बीच में से. टोटल एक्सपेंस रेशो जो होती है म्यूचुअल फंड्स की या जो भी ये मॉर्गेज एसोसिएशंस है, एक्सपेंस रेशो माइनस करके ये आगे यही इंटरेस्ट फॉरवर्ड कर देंगे इन्वेस्टर को, राइट? सो ये इंटरेस्ट इज नथिंग बट योर डिविडेंड और द इंटरेस्ट अर्नड ऑन द सिक्योरिटी, राइट? दिस इज हाउ दिस मॉडल वर्कड, सिक्योरिटाइजेशन, राइट? तो ये कई सालों तक तो
चलता रहा ये मॉडल. आई होप द मॉडल इज क्लियर टू एवरीबडी नाउ, or do I need to explain again? What did the bank subtract from the interest? The Servicing security fee, fee or the servicing service fee, fee? Service. सर्विस फी और द गारंटी फी. ठीक है. Okay. सो ये था मॉडल आपका. अब ये कई सालों तक चलता रहा, बट बाय द टाइम आप बोल सकते हो 2006 के अराउंड तक, अब ये यहाँ पर जो ये लोन दे रहे हैं, राइट, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स चेक करने बंद कर दिए, बिकॉज एवरीबडी वॉज सो हंग्री फॉर दीज काइंड ऑफ प्रॉफिट्स, द मार्केट्स वर बूमिंग सो मच, राइट. सो दे थॉट दैट व्हाई चेक ऑल द डॉक्यूमेंट्स, किसी के पास कोलेटरल नहीं भी है तो भी दे दो लोन, राइट. सो द यहाँ पर जो कोलेटरल चेकिंग था वो बहुत रिलैक्स हो गया, राइट. और ये आगे जब यहाँ पर इसको एसेट बना दिया जाता था, इवन दीज ऑर्गेनाइजेशंस, पहले तो सिर्फ फैनी में और फ्रेडी मैक होता था, नाउ मेनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैड आल्सो कम अप बाय 2006 और 5 6, राइट. So these private organizations had they were even more greedy for profits. So there were many players here taking the these loans. So overall what was that, the rules were very very relaxed, right. So by 2008-9 your housing market was booming heavily, and these investors were not only in US but in Europe also. So US and Europe में सबसे ज्यादा spread थे ये इस तरह के ये मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज के जो बायर्स थे, राइट. सो eventually these people, because they had no collateral, they had no stable income, so they had houses with them but they did not have any interest or money with them to pay to the bank. So what people did, they said that we do not have jobs and we do not have money to pay your interest. So they packed the house key in an envelope and then they sent it to the bank. They said that please keep the house, we don't have money to pay your interest. So what has happened here, we have a liquidity problem, right. We have all the houses, right, but we don't have money to pay to the bank, right. अभी हाउस को सब तो बेच ही रहे हैं, खरीदेगा कौन, right. So there is nobody to buy the houses, so that created the liquidity problem, and that is why we stepped into the recession of 2008-9, right. So you see how we can have all kinds of assets and still we can enter into a recession, or a company can be declared bankrupt. As a result, you see Lehman Brothers, they had to file for bankruptcy, right. So this is what liquidity problems can do to you. India was still safe from the recession of 2008-9, because we did not invest much in these mortgage-backed securities, right? Major investors were in US and Europe. That is why they were worst affected. So liquidity is clear to everybody? Yes Yes, or no? ma'am. Please. Yes, ma'am. Okay. Okay. So how far till now, how is the class going? You can give me the feedback. If you think that I need to go slow, I can do that, right? So if you have any kind of suggestion, you can tell me. कुछ तो बोलो, कुछ तो Great, ma'am. it's what? Ma'am, it's going great. अच्छा लग रहा है. Okay, okay. ठीक है, good, good. चलो, सो एट एनी टाइम आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, बिकॉज सी यहाँ पर ये इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के बिना के बच्चे कितने हैं यहाँ पे? एक भी नहीं एवरीबडी है. इज फ्रॉम इकोनॉमिक्स. ठीक है, Yes. ठीक है. सो इट एट एनी पॉइंट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, बिकॉज वी विल बी टॉकिंग स्टैटिस्टिक्स आल्सो, फाइनेंस आल्सो, समटाइम्स इकोनॉमिक्स आल्सो, राइट. सो अगर आपको नहीं समझ आता है तो प्लीज रेज योर हैंड, राइट. Now come to the next point, which is marketability, right. So marketability means that उसका क्रेडिट रेटिंग इतना अच्छा होना चाहिए ताकि इट इज मार्केटेबल इन दी मार्केट. सो इसका एक और मीनिंग ये भी है दैट इट शुड बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस, राइट. So marketability basically means the ease with which an asset can be bought or sold. So अगर आपको मार्केटेबल होना है तो इसका मतलब आपको बेसिक जो स्टॉक एक्सचेंजेस है इंडिया के तो यही है, एनएससी एंड बीएससी, इस पे लिस्टेड होना पड़ेगा आपको.
अगर अगर इन्वेस्टर्स को पता है कि आप लिस्टेड ही नहीं है यहाँ पे, तो दे विल नॉट इन्वेस्ट, राइट? सो बिकॉज वंस योर कंपनी गोज डाउन, वेयर विल दे सेल इट, राइट? अच्छा, ये तो हो गए इंडिया के। बाकी वर्ल्ड के कौन कौन से हैं मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस? निकी। ओके, निकी फॉर जापान। निकी वैसे इज नॉट, इट्स जस्ट एन इंडेक्स, निकी जो है, राइट? जैसे आपका सेंसेक्स है या फिर निफ्टी है। सो दिस इज फॉर जापान। डो जोन्स। न्यूयॉर्क वैसे स्टॉक एक्सचेंज। वैसे जो एक्सचेंज है दैट इज टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। ओके, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, वन ऑफ द मेजर वंस, वेरी गुड। Then लंदन London Stock Exchange, and then you have London Metal Exchange also, which is also one of the big ones. और यूएस में ही आपका नास्दाक भी है, ये भी बड़े वालों में ही आता है, राइट? What else? You have Shanghai Stock Exchange, right? Singapore Stock Exchange. Acha, this one story I heard, I don't know whether it is true or not, because you know a lot of information going on Facebook and WhatsApp, so you cannot trust it. But few years back, I read that you know one employee of TCS, TCS और एक और company भी HCL, either from TCS or HCL. You can take it as a fun story. Uh, so he slept for I think 1 or 2 minutes. He was an engineer. He was handling the you know the back end machinery of Singapore Stock Exchange, and they had contracted it out to TCS or HCL, whatever company, right? So he slept, and for those 1 or 2 minutes he slept, there was huge loss, right? Running in millions, which the stock exchange had to incur, right? So they eventually filed a lawsuit against TCS, right? And that employee was fired because of that mistake, was you know for dozing off for just 1 or 2 minutes, right? So when you are in these kind of professions, you have to be very very careful, right? What you do. अच्छा, इसके अलावा और कौन से हैं? पेरिस स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज आल्सो वन ऑफ द you know big ones. हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज। हांगकांग, गुड. टोरंटो। टोरंटो, ओके. Berlin Stock Exchange maybe. बर्लिन, राइट. सो ऑल दीज आर यू नो बिग वंस, राइट? ये जो हमारा इंडिया के हैं, ये इंडिया में मेजर हैं, पर वैसे जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट है वो स्टिल वीक है. सो दीज आर नॉट द बिग वंस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? जनरली जब हम डेटा उठाते हैं तो हम ये नास्दाक, एनवाईएससी और एलएसई, इन सब पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है? देन कम टू टैक्स बेनिफिट्स, राइट? So, investment factors affecting investment. So, we look at the tax benefits also, right? कि इससे आपका टैक्स सेव हो रहा है या नहीं हो रहा है. अभी आगे हम टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में करेंगे बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स जिसमें आपका टैक्स बचता है, ठीक है? सो especially for salaried people, this is a very important factor, right? Because every year we have to save at least 1.5 lakh under ATC, right? तो हमें तो 1.5 तो देखो मिनिमम करना ही है ऐसी इन्वेस्टमेंट में जिसमें टैक्स का बेनिफिट हो, ठीक है? 1.5 आपका एटीसी के अंडर आता है. इसके अलावा एडिशनल आप 50,000 कर सकते हो एनपीएस में, फिर उसका भी एग्जेम्पशन मिलता है इसके ऊपर 1.5 के ओवर एंड अबव, राइट? अब ये करेंगे डिटेल में. देन यू हैव योर hedge against inflation, right? So many people are afraid कि inflation से उनका value जो है erode हो जाएगा, right? For that people have come up with inflation indexed inflation indexed bonds, और ये तो आरबीआई के ही रहते हैं. inflation indexed bonds इंडिया में 2012 में लॉन्च हुए थे, राइट? इस पे आप आरबीआई की वेबसाइट पे भी जाके पढ़ सकते हो. सो इसमें होता क्या है, इफ आई हैव टू एक्सप्लेन इट टू यू इन वेरी वेरी सिंपल एंड लूज टर्म्स, इन लेमैन टर्म्स, तो सपोज करो इसको फ्लोट करेंगे कि हम 4% प्लस वॉट एवर इज द इन्फ्लेशन, इतना देंगे, ठीक है? या सपोज करो कि जब हमने लॉन्च करा था तब इस पे रेट मिल रहा था हमें 7%, एंड एट दैट टाइम इन्फ्लेशन वॉज 3%, ठीक है?
अब नेक्स्ट ईयर क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, 4% पे आ जाती है, तो इसका जो रेट है वो भी 8% पे आएगा, बिकॉज वी हैव टू कॉम्पनसेट पीपल फॉर द इन्फ्लेशन चेंज, राइट। ये मैंने बहुत ही लेमैन टर्म्स में बता दिया, अदरवाइज इसका प्रॉपर मेथोडोलॉजी होता है जिसके थ्रू ये कैलकुलेट होता है, ठीक है। देन यू हैव योर सेफ्टी ऑफ कैपिटल. So, how do we know that our capital is safe or not, right? So for that we have credit risk indicators. ठीक है, ये एक तो आपकी indicators, right? So एक तो आपका रहता है जो क्रेडिट रेटिंग्स होती हैं, सबसे मेजर यही और एंड व्हाई वुड कंपनीज रजिस्टर फॉर क्रेडिट रेटिंग्स, because if you look at the past data of credit ratings from Bloomberg is a very trustable source and very very well calculated, right? So उसमें से अगर if you see that 95% of the companies which they had listed as triple C, बिकॉज ट्रिपल बी तक ही आपका अच्छा ग्रेड माना जाता है, उसके बाद जो नीचे वाले हैं वो अच्छे नहीं माने जाते, उसको बेसिकली इट इज जंक ओनली, राइट। सो 95% ऑफ कंपनीज विच वर लिस्टेड एज ट्रिपल सी वेंट बैंकरप्ट, राइट। तो इसका मतलब investors are following these ratings very seriously. So if any company wants to be, or any company or country wants to, जो countries है उनका भी rating होता है ना, जैसे इंडिया को इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली, इंडिया का आई थिंक ट्रिपल बी तो रहता ही है रेटिंग, और थोड़ा बहुत डाउनग्रेड करते रहते हैं बीच में मूडीज या एस&पी, बट इतना तो रहता ही है बिकॉज वी आर ए डेवलपिंग कंट्री। तो अगर आपका रेटिंग इससे नीचे जाता है तो इन्वेस्टर्स विल टेक अ लुक एट इट, राइट, and they will not prefer to invest in that country because there is huge following of these credit ratings, and that is why countries and companies are forced to get themselves rated through these companies or through these credit rating agencies, right? So this is the screenshot I took from Bloomberg only. So if you see here, ये Moody's हो गया, S&P हो गया, राइट, देन फिच, इसी तरह से आपके अलग अलग ये हैं, बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज हैं। तो यहाँ तक आपका जो है इनका रेटिंग का तरीका देखो, सबका अलग अलग है, ठीक है। S&P का ट्रिपल ए, देन यू हैव ए प्लस, फिर प्लस हट गया, माइनस पे आ गया, न्यूट्रल, देन सिंगल ए, राइट। तो ये सबका अलग अलग है, और ये मूडीज का देखो अलग है, देन दे आर यूजिंग बोथ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स, देन न्यूमेरिकल्स, ये चला 3 तक, फिर उसके बाद बी आ गया, राइट। तो एवरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी दे हैव देयर ओन मेथड्स, राइट। सबसे ज्यादा फॉरकास्ट मूडीज और एस&पी की ही जनरली हम फॉलो करते हैं। अब ये जो नीचे देखो, ये जो ट्रिपल सी की रेटिंग्स है, दिस इज बेसिकली जंक ओनली, राइट। तो ये जो 95% कंपनीज जो यहाँ पर लिस्टेड थी पिछले 10 सालों में, ये सारी की सारी बैंकरप्ट हो गई। तो इसका मतलब इनकी जो प्रिडिक्शंस हैं वो बिल्कुल सही है, राइट। And what is the basis of these ratings? इसका रेटिंग्स का उनका एक फॉर्मूला रहता है, राइट, और उसी के बेसिस पे तो वो अर्न कर रहे हैं, राइट। जो उनका जो भी फॉर्मूला है वो अलग अलग बेसिस रहेंगे। जैसे देखो ग्लोबली जब हम करते हैं, कंट्रीज की असेसिंग करते हैं ना, ये कंट्रीज के लिए भी हो सकता है, जैसे सपोज करो ये इंडिया की रेटिंग ये होगी, या फिर ये भी हो सकती है, ठीक है। तो इसको असेस करने के लिए कोई एक बेसिस नहीं होगा, बहुत सारा होता है। जैसे अगर सिंस यू आर इकोनॉमिक स्टूडेंट, सो आई टेल यू, सो एक बेसिस तो देखो हो सकता है ये आपका डेफिसिट टू जीडीपी रेशो, ठीक है। आपका जो बजट डेफिसिट कितना चल रहा है जीडीपी के कंपैरिजन में, राइट। इसी तरह से आपका टैक्स कलेक्शन कितना है, टैक्स टू, वैसे टैक्स का इतना नहीं करते, डेट का होता है बेसिकली, डेट टू जीडीपी रेशो, ये कितना चल रहा है आपका, राइट। सो इस तरह के मेजर्स रहते हैं। और इफ यू टॉक अबाउट अ कंपनी, तो तब आपकी ये मार्केट कैप कितना है, ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना चल रहा है आपका कंपेयर टू अदर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री, राइट, आपके प्रॉफिट्स कितने हैं, सो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और जैसे ये कंट्रीज का अगर चल रहा है तो इसमें एक रीपेमेंट स्केड्यूल भी देखा जाता है, आप अपना लोन कितने सालों में
वापस कर लो। ठीक है, ये जो कंट्रीज के मामले में ये 3 फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं क्रेडिट रिस्क देखने के लिए किसी भी कंट्री का, राइट। जैसे इफ यू सी इन द ग्रीक डेट क्राइसिस ऑफ, कौन से साल में हुआ था ग्रीक डेट क्राइसिस? एनीबडी? व्हाट हैपेंड इन ग्रीक डेट क्राइसिस? यू आर इकोनॉमिक स्टूडेंट्स, यू शुड नो। अच्छा चलो कोई बात नहीं। सो वी हैव 10 मिनट्स लेफ्ट विद अस, ठीक है, तो मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ। Around 2008, 2009. हम्म, Ma'am, that is when it started. हाँ, that is when it started and it was in peak at its peak in 2011. That is how we refer it, right? Greek debt crisis. So the problem was that if you look first at the repayment schedule, right? तो रीपेमेंट शेड्यूल में जब आईएमएफ ने फर्स्ट बेल आउट दे दिया था ग्रीस को, उससे पहले इनका जो रीपेमेंट शेड्यूल था इसमें देखो फेवरेबल तो तभी होगा अगर हम बहुत जल्दी जल्दी रिटर्न कर रहे हैं, इनिशियल ईयर्स में ही रिटर्न कर रहे हैं मनी जिन कंट्री से हमने लिया था, राइट। तो अगर रीपेमेंट शेड्यूल ग्रीस का इस तरह से था, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, 5, ठीक है, कि हम पहले 5 साल में ही आपका प्रिंसिपल लौटा देंगे, राइट। सो आप जो आईएमएफ ने बेल आउट दिया था बिकॉज इट्स करेंसी इज टाइड टू अदर कंट्रीज इन यूरोजोन, राइट। तो उस बेल आउट का कंडीशन ही यही था कि आप ये रीपेमेंट शेड्यूल जो है वो चेंज करोगे, अभी आप पैसा नहीं दोगे किसी को बाहर, तो ये इनका जो रीपेमेंट था वो स्टार्ट ही सपोज करो यहाँ से हो रहा था। मैम व्हाट्स अ बेल आउट? बेल आउट मतलब कि आपकी इकोनॉमी जो है वो प्रॉब्लम में चल रही है और हम आपको लेट्स से 30,000 करोड़ का या 1 बिलियन का पैकेज देंगे ताकि आप अपनी इकोनॉमी को सही कर लो, ठीक है। आईएमएफ जो है उसमें बाकी कंट्रीज भी कंट्रीब्यूट करती हैं, तो आईएमएफ जो इंडियन सॉरी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, तो ये बेल आउट पैकेज देता है, बेसिकली लोन देता है। इट इज बेल आउट का मतलब कुछ नहीं है, लोन ही है, ठीक है, ये आपको रिटर्न करना है बाद में। क्लियर? यस और नो? यस मैम। सो ये जो रीपेमेंट शेड्यूल था कि हम इनिशियल 5 इयर्स में रिटर्न कर देंगे आपका लोन, तो वो जो लोन है दूसरी कंट्रीज का, उन्होंने बोला कि आईएमएफ ने बोला इसको चेंज करो और आप जो प्रिंसिपल है वो 6th ईयर से पे करना स्टार्ट करोगे, फिर ये 7th ईयर में आपने इतना सा दिया, 8th में इतना सा दिया, और बाकी जितना भी बचा हुआ था वो 10th में आपने दिया, ठीक है। सो दिस इफ यू सी दिस रीपेमेंट शेड्यूल, तो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत फेवरेबल नहीं है, राइट। बिकॉज हमें अगले 5 साल में इनकी सिचुएशन अभी इतनी खराब है तो अगले 10 साल में कितनी खराब होगी, है ना, वी डोंट नो, अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। सो द मोर द टाइम पीरियड इंक्रीजेस, द मोर रिस्क इंक्रीजेस एंड द अनसर्टेनिटी इंक्रीजेस, राइट। तो अगर ये आपका रीपेमेंट शेड्यूल इधर को पुश होता है किसी भी कंट्री का, सो वो फेवरेबल नहीं माना जाता है। उससे क्या होता है एज ए रिजल्ट, सो अब देखो ये कंट्रीज को जो है गवर्नमेंट है इनको कैसे पनिश करते हैं इन्वेस्टर्स, बॉन्ड यील्ड्स के थ्रू। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2001 के अराउंड आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द फाइनेंशियल एडवाइजर, उस टाइम क्लिंटन का गवर्नमेंट था। सो क्लिंटन का जो फाइनेंशियल एडवाइजर था, he once said that in another birth or in another lifetime I would want to be Clinton, or I would want to be US president, or the Catholic Church Pope, but in this year, in this lifetime I would want to be the bond yields, right? Because or the investor, right? Because they are the ultimate strength when your financial markets are very very strong, right? So अगर आप ये रीपेमेंट शेड्यूल इस तरह से शिफ्ट करते हो, अपनी मर्जी से चल रही है गवर्नमेंट, इकोनॉमी चलानी नहीं आ रही उसको, तो उससे इमीडिएट स्पाइक होगा बॉन्ड यील्ड्स में, राइट। बॉन्ड यील्ड का अगर ये घर जाके एक बार ये होमवर्क लिख लो अपना, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइसेस एंड बॉन्ड यील्ड्स। व्हाई? प्लीज राइट इट डाउन, आई विल सेंड इट टू यू ऑन गूगल क्लासरूम ऑल्सो, ठीक है। सो इन नेक्स्ट क्लास आई विल आस्क, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एवरग्रीन सा क्वेश्चन है जो हमेशा हर जगह पूछा जाता है, आपको कई बार इंटरव्यूज में भी पूछा जा सकता है बिकॉज यू आर इकोनॉमिक स्टूडेंट्स, राइट। सो ये
बॉन्ड यील्ड्स जब हाई चलेगी इसका मतलब करंट प्राइसेस बहुत लो हो गई। सो गवर्नमेंट जो भी आरबीआई बॉन्ड्स जैसे आपके होते हैं, वो कोई भी बॉन्ड्स फ्लोट कर रही है अगर पैसा लेने के लिए, बिकॉज दे डोंट हैव मनी, राइट, दैट इज व्हाई दे आर टेकिंग बेल आउट पैकेज फ्रॉम आईएमएफ आल्सो। सो इफ दे फ्लोट एनी काइंड ऑफ बॉन्ड्स, तो ना ही उसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ना ही उसमें जो आपके नेशनल आपकी कंट्री के सिटीजन है वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बिकॉज आपका रीपेमेंट शेड्यूल बहुत दूर तक शिफ्ट हो चुका है, राइट। सो उससे क्या होगा, इन्वेस्टर्स बोलेंगे कि हमें तो आप पे भरोसा नहीं है, तो इसलिए हमारा जो हम रिस्क बहुत ज्यादा उठा रहे हैं, तो इसलिए हमें यील्ड भी बहुत हाई चाहिए, हमें इंटरेस्ट भी बहुत हाई चाहिए इन फ्यूचर, राइट। और हम प्राइसेस इतनी नहीं पे करेंगे जितनी आप बोल रहे हो, बिकॉज हमें तो लग ही नहीं रहा कि ये जो आप सिक्योरिटी दे रहे हो इसकी इतनी वर्थ है भी, ये तो 100 नहीं है तो 50 रुपीज की है, राइट। So what happens as a result when you shift this repayment schedule, एंड ये जो आपकी रेशियोज है ये बहुत हाई हो जाती हैं, डेट आपका बहुत ज्यादा है, जीडीपी इतनी आ नहीं रही है आपकी कंट्री में, राइट, और बजट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, टैक्सेस में इतना कलेक्ट नहीं कर रहे जितना आपका खर्चा है, और जीडीपी उतनी आ नहीं रही, राइट। तो जब ये तीन फैक्टर्स आपके बहुत खराब स्कोरिंग दे रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स बोलेंगे दैट वी विल नॉट पे यू 100 रुपीज फॉर बॉन्ड्स, वी विल जस्ट पे यू 50 रुपीज, एंड वी विल टेक 12% interest and not 10% interest, right? So this is how investors punish the government for not, operating the economy well, right? Is it clear? Yes, is it clear or not how these ratings work and how are they calculated? Yes or no? Yes, कुछ तो ma'am. बोलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. See, these Yes, things ma'am. these things are a little complex, but the fun in studying is जब आपको complex लगे थोड़ी चीजें, है ना, तभी तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आप वही पुरानी चीजें पढ़ते रहोगे फिर क्या फायदा है ना। सो इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन। आज अभी कितना टाइम हो गया? वेयर इज माय फोन, आई कांट इवन फाइंड इट। 155. 155। अच्छा चलो, ये नेक्स्ट क्लास में फिर स्टार्ट करेंगे। मुझे लगा था आज मैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फिनिश कर दूंगी बट चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, है ना। आपकी अटेंडेंस एक बार डाउनलोड कर लेते हैं। जस्ट अ सेकंड। So I'll stop sharing my screen here. And, I'm stopping the recording here.